Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we'll be doing the poem Nose versus Eyes. This is a poem from your class 11 HSC. Okay, this is in your book. Alright, it's in the book English Yuvak Bharati Standard 11. And this chapter is your chapter number 2.5. Okay, so section 2 is all the poems, and this is the fifth poem in it. Okay, so now this poem is a poem written by William Cowper. He has written an amazing poem showing how somebody deserves something, but another person who's already well-to-do gets it. Okay, and now this is not written in a very direct way. Okay, it's written in a way wherein they're showing that the two parties or the two components here are the nose and the eye. Okay, unlike your general daily life where there are actual people in these scenarios, here he has used two characters, nose and the eye. They're not humans, they are parts of your body, you all know very well. Okay, so in a gist, okay, this poem is about who needs glasses. Okay, so now it's about who should have the right to use the glasses. Now, why does the question arrive? This is because the glasses as such, they are designed for your eyes. Okay, they're designed for your eyes to have corrected vision so you can see clearly. For those whose eyes do not function exactly how they should, glasses or spectacles, they are designed so that error in your eyes perception can be cleared. Okay, मतलब अभी जिसे भी चश्मा है उस इंसान को अच्छे से दिखता नहीं है, मतलब आंखों में दिक्कत है, तो उनके लिए ग्लासेस या चश्मे बनाए गए हैं. बट यहाँ पे जो हमारा नोज है यानी कि नाक, वो कहता है कि ग्लासेस या फिर स्पेक्टिकल्स को रखा तो मुझ पर जाता है, तो इस हिसाब से ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स मेरे काम की चीज है. अगर इन्हें मुझ पे टिकाया जाता है, मेरे मदद से चेहरे पे इसे प्लेस किया जाता है, तो चश्मे को यूज करने का हक मुझे है. बट एक्चुअल में जरूरत और हक किसको है? आंखों को. क्यों? वो बनाया ही आंखों के लिए गया है, isn't it? तो इस पोएम में वी सी दैट द एक्चुअल पर्सन जिसे इन चीजों की जरूरत है, जिसे स्पेक्टिकल्स या चश्मे की जरूरत है, दैट इज योर आईज, उसे वो मिल ही नहीं रहा है. आईज आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू यूज ग्लासेस, वेयर इन द नोज जिसे इसकी जरूरत ही नहीं है इज गिवन ग्लासेस. नाक क्या इस्तेमाल करेगा चश्मे का? नाक को ना देखना है, ना किसी चीज को ढंग से परसीव करना है, बट नाक को ये राइट मिलता है कि वो चश्मा यूज कर सकता है. नाउ दैट वी नो द स्टोरी, लेट्स गेट इनटू द पोएम. हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. विलियम कापर वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 18th century English poets and composer of hymns. His poems deal with nature and everyday life. Like in this poem, everyday life मतलब रोज की लाइफ में कैसे there is अन्याय यानी injustice going on, उसके बारे में बात हो रही है. He is aptly described by Samuel T. Coleridge as the best modern poet of his times. Though he studied jurisprudence, he later admitted that he was not much inclined to the legal profession. Jurisprudence यानी law, okay? His first या earlier education was in the field of law. But उन्हें बाद में बताया कि उन्हें law में कुछ ज़्यादा रुचि या interest नहीं था. He wrote, "Happy is the one who knows just as much as the law to make himself as a little merry now and then with the solemnity of the judicial proceedings." अभी ये एक लाइन है जो इन्होंने कहा है, विलियम कापर ने कहा है. एक छोटा सा थॉट होगा कि जब भी आप घर पे बैठे हो, ऐसे ही बात कर रहे हो किसी के साथ, खाना खा रहे हो, के लिए सोच रहे हो, तो इस लाइन के बारे में सोचिएगा. काफी डीप लाइन है ये. अगर आप एक बार समझ लेना तो आपके दिमाग में एक आप कह सकते हैं कि अंदरूनी डिबेट चालू हो जाएगा रिगार्डिंग सम थिंग्स दैट पीपल नो एंड क्या उन्हें वो चीज जाननी चाहिए या नहीं. नोज वर्सेस आईज इज अ सैटायर ऑन द जुडिशियल सिस्टम. अभी देखिए, हमें क्वेश्चन आता है राइटिंग द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, जिसमें आपको ये 3 लाइंस काफी यूज होंगी. ओके, नोज वर्सेस आईज इज अ सैटायर on the judiciary system. It also mocks at the stone-blind justice in a humorous manner, emphasizing upon the lack of empathy and common sense. अब हम सबने सुना है कानून अंधा है, the law is blind. But ये क्या सही है हमारे लिए? अभी recently हमारी जो लेडी जस्टिस है
दिस इज अबाउट इंडिया। लेडी जस्टिस की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है। क्या ये पट्टी हटाना सही निर्णय था या गलत? अब इसके बारे में सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो रिसेंटली इंडिया में लेडी जस्टिस की आंखों पर से पट्टी हटाई गई है। इस पोयम में बताया गया है कि हाउ लॉ या जस्टिस इज ब्लाइंड, मतलब कानून कैसे अंधा है, कानून किसी के दिखने पर भेदभाव नहीं करता, राइट। और कानून सबको एक नजर से देखता है, बट अगर कानून की आंखें बंद है तो क्या कानून देख भी सकता है? एक और चीज ये कहा गया कि किसी कॉमन सेंस और एम्पैथी की कमी है। अब जरूर किसी गरीब इंसान को पैसों की ज्यादा जरूरत है, एक अमीर इंसान को कम जरूरत है। एक गरीब इंसान को अपना लोन रीपे करने में ज्यादा टाइम लगेगा, दैट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट। और एक अमीर या वेल टू डू इंसान को अपना लोन रीपे करने में कम टाइम लगेगा। इस प्रॉब्लम को समझ के उसके हिसाब से उनका एक्शन लेने के लिए वी नीड एम्पैथी, यानी हमें ना दूसरों को या सामने वाले को समझने की जरूरत है कि उस इंसान को किसी चीज की कितनी जरूरत है, किसी चीज के लिए उसे कितनी मोहलत दी जानी चाहिए, राइट। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए हमें एक डिसीजन लेना है। वी नीड टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट द अदर पर्सन्स नीड्स आर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन गिव अ सॉल्यूशन। Whereas लॉ में हर इंसान के लिए सेम चीज है। तो आई पर्सनली थिंक कि एम्पैथी एंड कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लॉ, बट देन अगेन इंडिया का लीगल सिस्टम कैसा है हम सब जानते हैं, इट्स इक्वल एंड द सेम फॉर एवरीबॉडी। आप अपने विचार इस पे लिख सकते हैं। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्चुअल पोएम, नोज वर्सेस आईज। Between nose and eyes, a strange contest arose. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was all the world knows to which the said spectacle ought to belong. तो अभी ना इसका हिंदी में बता देती हूँ मैं पहले। नाक और आंख यानी नोज एंड आईज, इन दोनों के बीच में ना एक दिन बहुत अजीब सा कॉन्टेस्ट, यानी एक आप कह सकते हो कि एक अजीब सा रेस टाइप ऑफ थिंग। कॉन्टेस्ट मतलब जैसे कि कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें कौन ज्यादा अच्छा है, राइट, इसके बारे में बात होती है। तो कॉन्टेस्ट अरोज मतलब दोनों के बीच में एक दिन झगड़ा हो गया कि ये एक टॉपिक बाद में बताया है कि इस पे ना एक दिन झगड़ा हो गया नाक और आंख के बीच में। स्पेक्टिकल सेट देम अनहैपीली रॉन्ग, मतलब नाक और आंख के बीच में दरार डालने वाला था स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वाज एज ऑल द वर्ल्ड नोज टू विच द सेट स्पेक्टिकल ऑट टू बिलोंग। तो अब दुनिया ही जानती है कि चश्मे यानी स्पेक्टिकल्स किसके लिए है, पर ये यहाँ पे झगड़ा हुआ ही इस मैटर पे है कि whom does the spectacle belong to, मतलब चश्मा किसके लिए है, किसको दिया जाना चाहिए स्पेक्टिकल। Okay, so nose in the eyes, a strange contest arose, spectacles set them unhappily wrong. Point in dispute, dispute यानी disagreement या clash दिया गया है। dispute मतलब अभी देखो दो भाई है, दोनों को जमीन का बंटवारा करना है। दोनों को लगता है कि बड़े वाले को लगता है कि मैं बड़ा हूँ मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, छोटे वाले को लगता है कि मुझे ज्यादा चाहिए। वैसे तो लीगली एंड ऐसे भी दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, बट दोनों में झगड़ा चल रहा है कि ये हिस्सा इतना बड़ा हिस्सा मुझे चाहिए या उतना बड़ा हिस्सा मुझे चाहिए, या दोनों में झगड़ा चल गया कि अच्छा वाला लैंड मुझे चाहिए। तो दिस इज अ डिस्प्यूट, दोनों में डिसएग्रीमेंट है। एज ऑल द वर्ल्ड नोज टू व्हिच द सेड स्पेक्टिकल्स ऑट टू बिलोंग, अभी पूरी दुनिया जानती है कि चश्मा किसके लिए है, द स्पेक्टिकल्स आर मेंट फॉर द आई, राइट। स्टिल देयर इज अ डिस्प्यूट दैट हैज नाउ arisen between the nose and the eyes. Moving on to the second stanza. So Tongue was the lawyer and argued the case with great deal of skills and a wig full of learning, while Chief Baron Ear sat to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning. Okay, so Tongue was the lawyer, मतलब वकील टंग था। Okay, टंग as in your जीभ, दोनों की हिसाब से दोनों की तरफ से बोलने वाला टंग था। एंड आर्ग्यूड द कॉज विद ग्रेट डील ऑफ स्किल, बहुत ही अच्छे से टंग ने इस प्रॉब्लम के लिए दोनों पक्ष से बात की। आप समझेंगे कि ये एक आप कह सकते हैं कि दिस इज अ sarcasm because we'll see in the future that tongue is partial. So with a great deal of skill and a wig full of learning, wig full of learning, अभी आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में जहाँ पे लॉयर्स या फिर जो भी ऐसे कोर्ट
या लॉ पढ़े हुए लोग हैं who are at good place, they wear wigs, ऐसे curly बाल वाले wigs पहने देखे होंगे आपने, mainly movies set in the British area और British times, right? तो wig full of learning, तो जिन्होंने भी लॉ पढ़ा है, जो बहुत learned होता है ना, उन्हें wig पहनाया जाता है. तो टंग को कहा गया है कि बहुत learned है, बहुत skillful है, so that's why it's wearing a wig. Now this is hypothetical, जीव ने कोई wig नहीं पहन रखी है, but it's said कि it's so smart and qualified to fight the case. While chief baron, baron यानी powerful person, यानी ये सब इंग्लिश टर्म्स है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता बैरन वगैरह, it is mostly an English thing. So while chief baron ear sat to balance the laws. Sat to balance the laws मतलब बैलेंस, लॉ को बैलेंस कौन करता है? लेडी जस्टिस. या यहाँ पे बैलेंस द लॉ मतलब the ear became judge. ओके, तो हमारे यहाँ पे दो पार्टीज क्या है? नोज एंड आईज. लॉयर कौन है? टंग. एंड जज कौन बना? ईयर. सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग. ओके, सो फेम्ड एज इन द पर्सन इज वेल नोन. वो जाना ही जाता है अच्छे से डिसर्न करने या बराबर जजमेंट देने के लिए. Third stanza. On behalf of the nose, it will quickly appear as your lordship, he said. He यानी tongue. Okay. On behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time out of mind. Okay. So now टंग बोलता है कि एकदम सीधा केस है, द आंसर इज वेल नोन. सो नोज की तरफ से बात करते हुए मैं ये कहूंगा कि जो हमारा नोज है, और आप भी अच्छे से देखेंगे, यू विल अग्री विद दिस, योर लॉर्डशिप, यानी कि ईयर को लॉर्डशिप कहा जा रहा है. माय लॉर्ड, हिज मैजेस्टी, ये सब कहा जाता है, राइट? तो माय लॉर्ड को यहाँ पे योर लॉर्डशिप कहा गया है. विल अनडाउटेडली फाइंड मतलब आपको जरूर ये सही लगेगा that the nose has had spectacles always in wear, यानी कि हमेशा spectacles को पहनने वाला, यानी कि जिस चीज की वजह से spectacles को हम आंखों पे टिकाए रख सकते हैं, मुंह पे टिकाए रख सकते हैं, वो है nose, which amounts to possession time out of mind. मतलब क्योंकि ये जो spectacles है वो हमेशा नाक पर रहती है, it basically means कि उसे यूज करने का हक भी नाक को ही है. Then holding the spectacles up to the court, your lordship observes that they are made with a straddle as wide as the ridge of the nose is, in short, designed to sit close to it, just like a saddle. तो भी टंग जो कि बहुत स्किल्ड है, बहुत ही लर्नड है, राइट? और स्किल्ड और लर्नड इंसान को सही गलत में फर्क पता होता है, बट यहाँ पे टंग गलत का साथ दे रहा है, राइट? बिकॉज वो कहता है कि देखिए ये स्पेक्टिकल्स का शेप कैसा होता है, हम सब जानते हैं. चलो यहाँ पे हैरी पॉटर का स्पेक्टिकल बना लेते हैं, या गांधी का स्पेक्टिकल बना लेते हैं, जो भी सही आपको लगे. ये जो बीच में पार्ट है, रिज है ये, ठीक है? टंग कहता है कि आप ध्यान से देखिए इस चीज को. इसे देख के आपको नहीं लगता कि ये नाक के विड्थ के हिसाब से बनाया गया है, नाक पर रखने के लिए बना गया है इसे? तो इस हिसाब से स्पेक्टिकल्स को डिजाइन ही नोज यानी नाक के लिए किया गया है. दैट इज व्हाई माय लॉर्ड, ये स्पेक्टिकल नाक की अमानत है. ओके, सो एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज. रिज ऑफ द नोज मतलब आंख और नाक के बीच में, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक बोन होता है जो बहुत हार्ड होता है, जिस पे आप स्पेक्टिकल रखते हैं. दैट प्लेस इज कॉल्ड द रिज ऑफ योर नोज. ओके, so in short, it is designed to sit close to the nose just like a saddle. Saddle मतलब आपने देखा होगा हॉर्स के ऊपर इंसानों के लिए बैठने के लिए ना एक स्ट्रक्चर रख देते हैं, सीट जैसा होता है वो, ताकि इंसान आराम से बैठ पाए, उसे सैडल कहते हैं. एंड सिमिलरली नाक पे जो रखते हैं हम लोग चश्मा, वो भी एक चश्मे के लिए सैडल की तरह है, ताकि वो चश्मा नाक पे बैठ पाए अच्छे से. Alright, again would your lordship a moment suppose, tis a case that has happened and maybe again, that the visage or countenance had not a nose. Pray, who would or who could wear spectacles then?
तो भी कहता है टंग कि एक बार के लिए चलो ऐसे सोचते हैं कि मुंह पे नाक ही नहीं होता, नोज पे नाक ही नहीं होता, मतलब ओके यू माइट थिंक कि वोल्डेमॉर्ट टाइप फेस इमेजिन करो जिसपे नाक नहीं है, नाक की जगह से 2 छेद है बस. ओके, सो अगर फेस पे there was no nose, then how would we ever have kept the glasses on the face? How would we ever have managed to keep our face in place, the spectacles in place for the eyes to use, right? This clearly means that the spectacles are extremely important for the nose, and they had to be used by the nose because without a nose there is no way you could have used the spectacles. Okay, तो visage या countenance मतलब face. Her countenance was pretty. अगर आपने Merchant of Venice पढ़ा है वहाँ पे countenance use किया गया है पोर्शिया के face के लिए, right? So अगर हमारे countenance या face पे अगर नाक या nose ही नहीं होता, so how would we have kept the glasses? And because of these 3 reasons, okay, एक तो नाक पे टिका रहता है, उसका जो बीच का पार्ट है इट इज डिजाइन ताकि वो नाक पे रख सके, और तीसरा अगर नाक ना होती तो चश्मा यूज ही नहीं कर सकते. इन 3 रीजंस को दिया गया है अब तक कि why the glasses should be used by the nose. Alright, let's move on. On the whole, it appears, and my argument shows, with the reasoning the court will never condemn, that the spectacles plainly were made for the nose, and the nose was as plainly intended for them. तो अभी टंग या हमारा लॉयर जो है who is very skilled and learned says कि on the whole मतलब ओवरऑल सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो कहता है कि जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट के हिसाब से भी सही होगा, because you know the court has heard the argument and clearly all these points were in the favor of the nose, saying कि nose के लिए ही spectacles बने हैं and spectacles के लिए ही nose बना है. अब ये कितना सही है आप ही सोचो. हमारे टंग यानी लॉयर महोदय ने कहा है कि 3 पॉइंट्स दिए नोज के तरफ से, ठीक है, कि वो बीच का जो चीज है वो नोज के रिज जैसा शेप्ड है और वो नाक पे हम लोग टिकाए रखते हैं इसलिए, और तीसरा की नाक होती ही नहीं तो हम कभी यूज ही ना कर पाते. इन 3 रीजंस की वजह से वो नाक का है. The lawyer did not intend to speak from the side of the eye even for a second. एक बार भी आंख की तरफ से टंग ने बात ही नहीं की. और गिविंग दिस पार्शियल एक्सप्लेनेशन हमारा जो नोज कहता है कि हमारा टंग कहता है कि लॉयर जो हमारे जस्टिस है, जो हमारे जज है, वो मना ही नहीं कर सकते इस बात के लिए कि नोज इज मेंट फॉर द स्पेक्टिकल्स एंड स्पेक्टिकल्स इज मेंट फॉर द नोज. बिकॉज जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं उसके हिसाब से glasses are meant for the nose. Shifting his side as a lawyer knows how, he placed again on behalf of the eyes. But what were his argument? Few people know, for the court did not think they were equally wise. तो अभी ना लॉयर जो है, अभी ये लॉयर है, पहले के टाइम पे कैसा होता था ना, दोनों तरफ से एक ही लॉयर बात करता था. तो बिकॉज ये लॉयर है, इससे आइज की तरफ से भी बोलना है तो वो कुछ बोलता है, बट किसी को पता ही नहीं कि उसने क्या बोला और किसी को याद भी नहीं है, बिकॉज कोर्ट की मान्यता में वो जो पॉइंट्स टंग ने आइज की तरफ से प्रेजेंट किए थे वो उतने वैलिड ही नहीं थे. ऑलराइट, आप ध्यान से सोचो, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, किसी से भी पूछो चश्मा किसके लिए, सब बोलेंगे आंखों के लिए. बट हमारा जो टंग था उसने उतना अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया इसकी तरफ से, एक्चुअल में जो पर्सन इन नीड है उसकी तरफ से, कि कोर्ट को लगे कि हाँ आंखों के लिए जरूरी है. So it was a partial case. The case was fought partially by the tongue. The balance was not balanced. It was fought on behalf of the nose rather than equally. So despite the fact that justice equal है, justice sees everyone equally, अगर केस प्रेजेंट ही अनजस्ट तरीके से किया गया हो तो लॉ भी पार्शियल होगा, राइट? सो इस हिसाब से कहा गया है कि जो हमारा टंग है उसने आइज की तरफ से बात की, like a good lawyer should, but वो पॉइंट्स क्या थे किसी को पता ही नहीं, क्योंकि वो उतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं कि कोर्ट उसे कंसिडर करके आइज को चश्मे ग्रांट कर सके. So his lordship decreed with a grave solemn tone, decisive and clear without one if or but, that whenever the nose puts his spectacles on by daylight or candlelight, eyes should be shut. मतलब अभी लॉर्डशिप यानी हमारे जो जज थे, यर ने कह दिया, डिक्रीड मतलब वर्डिक्ट, डिक्रीड मतलब
फाइनली आप कह सकते हैं कि जस्टिस कर दिया. ओके, कोर्ट का ऑर्डर होता है, द लॉ हैज डिक्रीड. ठीक है, द लॉ हैज डिक्रीड दैट स्टीलिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस, स्टीलिंग इज अ क्राइम. राइट, तो मतलब कोर्ट ने कह दिया है कि स्टीलिंग क्राइम है, और अगर किसी ने चोरी की यानी स्टील किया तो उसे सजा होगी. करेक्ट. सो नाउ हिज लॉर्डशिप मतलब हमारा जज कौन था अब तक? हमारा जज था ईयर. ईयर डिक्रीड मतलब डिसीजन दे दिया विद अ ग्रेव सोलम टोन. ग्रेव सोलम टोन मतलब एक बहुत ही दृढ़ टोन में. टोन यानी कि आवाज वाला टोन नहीं, टोन एज इन एक ऐसे टोन में बोलना. मतलब या तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज गिव मी द बुक, या तो आप कह सकते हैं हे गिव मी द बुक. तो ये दोनों टोन अलग थी. प्लीज गिव मी द बुक एक रिक्वेस्टिंग टोन था, हे गिव मी द बुक एक ऑर्डरिंग टोन था. तो वैसा टोन. डिसिसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और बट, मतलब एकदम क्लियरली देयर वाज नो इफ और बट. तो केस सिचुएशन पे नहीं था ये वर्डिक्ट, इट वाज जनरलाइज्ड वर्डिक्ट या जनरलाइज्ड आप कह सकते हैं जनरलाइज्ड लॉ था दैट व्हेनेवर द नोज पुट्स हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, तो जब भी नाक पे स्पेक्टिकल्स रखे जाए, या वो दिन हो या वो रात, द आईज हैव टू बी शट. मतलब द आईज कैन नॉट यूज द स्पेक्टिकल्स. नाक को कोई काम ही नहीं है स्पेक्टिकल्स का. द नोज डज नॉट हैव टू यूज द स्पेक्टिकल्स. नाक क्या करेगा? सांस लेने में स्पेक्टिकल्स की थोड़ी जरूरत होती है. बट इट इज डिक्रीड दैट व्हेनेवर द नोज हैज पुट ऑन द स्पेक्टिकल, इट शुड बी shut. The eyes should be shut. All right. So with this, we are done with this poem. So if you have any doubts, put it in the comments below. Like, share, and subscribe the video as well. And अगर आप कोई और टॉपिक या कोई और पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए, पुट दैट डाउन एज वेल. आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड मैथ्स के सॉल्यूशंस के लिए भी यू कैन रेफर टू दिस चैनल. Consider subscribing because there's going to be a lot of content for HSC board right now. And yeah, check out the other videos as well. And obviously, if there is any doubts, put them down. I'll surely be answering that. You'll see that I've always answered the doubts. So go ahead,